Hello friends, as we know, before knowing about anything, first we need to know the background or the history of the particular person or the topic to understand in a better manner. Once we know the background and the history, learn things more better. I know the history is quite boring for the most of the people, but don't worry, I make it little interesting. But trust me, it's very helpful for your future lectures which is coming soon on Indian Contract Act and other subjects as well. So stay tuned, don't forget to subscribe my channel and let's start. I will read it in English first and then explain in Hindi for a better clarity. So here. In ancient time, the contract is like a gentleman promise or a commitment. At that time, there is a great importance to the keeping a promise or a commitment from one person to another, especially in Indian history. The people were very honest and everyone used to follow the rule itself as a worship. Promise or commitment can be given and taken by anyone. It may be a king or maybe a common man. No matter, but once promise or a commitment is given, both the party or parties has to bind with the promise or a commitment which is currently known as a contract. इसका मतलब कि जब पुराने ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे तब वो एक वचन माना जाता था, उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व था। जब कोई किसी को वचन देता था तो उसे पूरे ईमानदारी के साथ निभाता था। भारत के इतिहास में लोगों की काफ़ी ईमानदारी थी, वो अपने वचन की पूजा करते थे और अपना वादा निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते थे या फिर लेने को कहा जाता तो ले भी लेते थे। फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब, सभी लोग अपना वचन निभाते थे और वही वचन आज कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। There are some great and popular examples of keeping a promise or a commitment in history. Just like Dasharatha was a great king in an epic Ramayana who sent his son Rama to exile just for keeping his promise or commitment, and Dasharatha dies in the night due to the pain and misery of his separation from Rama. That kind of spirit followed in Indian history just for keeping the promise and the commitment. यानी कि इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए हम हमारे राजा दशरथ को ले सकते हैं जो रामायण के अहम पात्र है, जिन्होंने अपने पुत्र राम को ही वनवास में भेज दिया था जस्ट फॉर कीपिंग हिज प्रॉमिस। उनका एक वचन था, उसका वचन पूरा करने के लिए उन्होंने राम को वनवास भेज दिया था। और अपने पुत्र यानी अपने बेटे के सेपरेशन की वजह से, दूरी की वजह से वो इतना दुखी हुए कि वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका एक रात को स्वर्गवास हो गया। और उसी तरह राम ने भी अपना वचन नहीं तोड़ा, पूरा 14 साल का वनवास पूरा करके ही वापस आए। अगर हाल ही में अगर हम देखना चाहिए मोर क्लियरिटी के लिए तो हाल ही में हिट हुई फिल्म का भी अब एग्जांपल ले सकते हैं, याद कर सकते हैं कि किस तरह से बाहुबली में रानी शिवगामी का एक डायलॉग था, मेरा वचन ही मेरा शासन, और किस तरह कटप्पा ने अपना वचन पूरा करने के लिए बाहुबली को मार दिया था। तो कुछ इस तरह का एक स्पिरिट था, एक मॉरल वैल्यू थी, कोई भी अपना वचन नहीं तोड़ता था। तो आगे देखते हैं। बट दिस कमिटमेंट हैज स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यू। लॉ वॉज नॉट बिहाइंड इट, नॉर was there any legal recognition, but gradually the experience of a pledging in a professional relation and the need of give a legal recognition to it, along with the decline of value and moral, the society has experienced this, and that is the why a pledge from a moral and a spiritual point of view has become a secondary, obeying the secondary recognized business word importance and gain prominence. इसका मतलब लेकिन फिर भी इसके पीछे कोई कानून नहीं था, ना कोई कानूनी मान्यता थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसके व्यावसायिक संबंधों में प्रतिज्ञा का अनुभव और मूल्यों और नैतिक के पतन के साथ साथ इसे कानूनी मान्यता देने की आवश्यकता पड़ने लगी। उसमें यह अनुभव किया गया कि कुछ लोग धोखा छल कपट कर लोगों में विश्वास कम हो रहा है और इसीलिए नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की जो प्रतिज्ञा जो प्रॉमिस था उसका जो भरोसा था वो कम हो रहा है। तो अभी लोगों में वचन पालन करने के प्रति वो कोई रुचि नहीं रही है, तभी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी और उसके चलते हुए कानून बनाना पड़ा और वैधानिक मान्यता प्राप्त व्यावसायिक शब्दों का पालन करना और उसे महत्व देना अनिवार्य हुआ, इसीलिए कानून को महत्व और प्रमुखता मिली। द करंट कॉन्ट्रैक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लीगल वैलिडिटी। एवरी प्रॉमिस और एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ और विच कैन बी अपहेल्ड बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. In ancient time, this legal recognition was not a special force, but the emphasis was that if any formality was reduced from its formality, then the contract would not be complete and it will be considered as a null and void. मतलब कि वर्तमान अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इस कानूनी वैधता की विशेषता है। प्रत्येक वादा या समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है या जिसे कानून द्वारा बनाया या बरकरार रखा जा सकता है वह एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है। प्राचीन काल में यह कानूनी मान्यता कोई विशेष शक्ति नहीं थी, लेकिन जोर इस बात पर दिया था कि यदि कोई औपचारिकता या फॉर्मेलिटी कम हो जाती है तो वो अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा और उसे शून्य कहा जाएगा, अमान्य कहा जाएगा या अशक्त घोषित किया जाएगा।
Hence we can say every promise or agreement which is enforceable by law or which can be obeyed by law is called a contract, promise, agreement, commitment, etc. The current contract is characterized by its legal validity. इसका मतलब इसीलिए हम वादे या समझौते को कह सकते हैं कि जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है या जिस कानून द्वारा पालन किया जा सकता है उस अनुबंध, वादा, समझौता, प्रतिबद्धता आदि कहा जा सकता है। और करंट कॉन्ट्रैक्ट जो इसकी कानूनी वैधता की विशेषता है। The practice of a contract in its various form was in the business relation of a society. The term contract was discovered much later. The word contract is very broad. The part of a contract itself are a sales, loan, mortgage, bailment, partnership, agency, marriage, etc. But in its present form, the contract has assumed a new legal meaning. Its act in India was made in 1872. यानी कि वैसे तो व्यापारिक और सामाजिक संबंधों में कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग प्रकार से चल रहे थे, लेकिन अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट का शब्द बहुत बाद में खोजा गया। अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट शब्द अर्थ बहुत बड़ा और व्यापक है, जैसे कि बिक्री, ऋण, बंधक, जमानत, साझेदारी, एजेंसी, विवाह आदि है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध ही है और उसी के हिस्से है, लेकिन इससे वर्तमान स्वरूप में अनुबंध ने नए कानून अर्थ ग्रहण किए हैं और भारत में इस अधिनियमन को 1872 में बनाया गया था, जिसको हम आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से जाना जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट आर रेगुलेटेड बाय द सेम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देयरफॉर इंडियन कोर्ट्स आर नाउ बाउंड टू फॉलो दिस रिटन लॉ इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दे शुड स्टडी दिस एक्ट and find the suitable meaning and intent. And the Indian Contract Act is based on the British Contract Act, but the British Contract Act can be availed only if either Indian Contract Act is silent on a question or its system is unclear, and British law is not inconsistent with the Indian condition and society and social status. यानी कि अब जो भी भारतीय कानून होगा कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के हिसाब से ही उसको चलाया जाएगा। यानी कि भारतीय अदालत में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट के मामले आएंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिखित कानून के हिसाब से ही पालन किया जाएगा। यानी जब भी कोई वचन पालन या कॉन्ट्रैक्ट के संबंधित विवाद हो तो कोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखित कानून की ही व्याख्या के हिसाब से निर्णय लेना होगा और उन्हें अधिनियमन का अध्ययन करना चाहिए और उपयुक्त अर्थ इरादे खोजना चाहिए। और जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी पॉइंट पे साइलेंट हो जाता है तो तभी उनको ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हेल्प लेनी चाहिए। और जब भी हेल्प लेते समय ये देखना ज़रूरी है कि ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने सोशल सोसाइटी कंडीशन में मेल खा रहा है। अगर वो कोई भी अपने परंपरा को उल्लंघन कर रहा है तो ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट की वो मदद नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज ले सकते हैं। तो ये थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हिस्ट्री। होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और अगले लेसन में हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए आज का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसको फॉर्मेशन के लिए कौन से इसेंशियल्स है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।